سیکریٹریٹ میں آموں کی مٹھاس پر سیکیورٹی کا پہرا۔ ممکنہ خدشات کے پیش نظر آموں کی پیٹیاں لانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حکم نامہ جاری، سیکیورٹی اہلکاروں کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث سندھ سیکریٹریٹ کی تمام عمارتوں میں آموں کی پیٹیاں لانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکیورٹی ایاز علی راجپر کے دستخط سے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق سیکریٹریٹ کی کسی بھی عمارت یا دفتر میں آموں کی پیٹیاں داخل نہیں کی جا سکتی، جبکہ ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ پابندی پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور آموں کی پیٹیوں کو سیکریٹریٹ میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ کراچی کے اربوں روپے مالیت کے میگا منصوبے BRT ریڈ لائن پر کرپشن کے سیاہ بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ترقی کے سفر کو مبینہ مالی بے ضابطگیوں نے دھندلا کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو گئی اور ذمہ داروں کے گرد قانون کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت پر محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگزیکٹو جنوبی عمر فاروق مہر کی سربراہی میں اینٹی کرپشن ٹیمیں متحرک ہیں اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر احمد عباسی اور سابق ڈائریکٹر فائنانس جامن داس تحقیقات کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ حکام کے مطابق دونوں افسران پر کانٹریکٹ یا نجی فرم کو مبینہ طور پر قواعد اور ضوابط کے برعکس ایڈوانس ادائیگیاں جاری کرنے والے اور سرکاری فنڈز میں بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں۔ تحقیقات کے سلسلے میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، تاہم دونوں افسران گھروں سے غیر حاضر پائے گئے ہیں۔ حکومت سندھ نے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے، ذمہ داروں کی گرفتاری اور شواہد کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ شہر قائد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے فینسی اور جعلی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر ناکے لگا کر چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ بغیر نمبر پلیٹ یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر قائد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جعلی، فینسی اور بغیر نمبر پلیٹس گاڑیوں و موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شہر کے مختلف علاقوں میں خصوصی ناکے لگا کر چیکنگ کی جا رہی ہے، جہاں ٹریفک پولیس کے ساتھ CPLC، ڈرائیونگ لائسنس ونگ، ایکسائز اور ضلعی پولیس کے افسران بھی موجود ہیں۔ صدر، کلفٹن، گلستان جوہر، ناظم آباد اور دیگر اہم شاہراہوں پر قائم ناکوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ DSP ٹریفک سعید کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ، جعلی نمبر پلیٹ یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کو تحویل میں لیا جا رہا ہے، جبکہ موقع پر جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ ناکے لگتے ہیں ہمارے آج، جیسے کہ یہاں پر بھی ہے اور دواخانہ صدر میں بھی اور سائڈ ایریا میں بھی ہے، تو اس حساب سے ہم جو نمبر پلیٹیں ہیں جو گورنمنٹ نمونے کے مطابق نہیں لگیں، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ 2 گاڑیاں روکی بھی ہیں، جس میں ایک پہ تو ہے ہی نہیں اور ایک پہ ٹیمپرنگ ہے، یہ تقریباً چلی جاتی ہے، ہم 550 میں تھانے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جو گاڑیاں پہ چھوٹی نمبر پلیٹ ہے، آگے پیچھے لگی ہوئی ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن اس کا ہم چلان کر دیتے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مہم کا مقصد جرائم کی روک تھام اور گاڑیوں کی درست شناخت کو یقینی بنانا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سرکاری طور پر منظور شدہ نمبر پلیٹس نصب کریں اور ضروری دستاویزات ہمراہ رکھیں تاکہ چلان اور قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ کورانگی نمبر 3 کے سیکٹر 34R کے مکین بھی پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 برس سے پانی کی فراہمی تقریباً معطل ہے، جس کے باعث انہیں مہنگے داموں ٹینکر خرید کر اپنی ضروریات پوری کرنا پڑ رہی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نمبر 3 کے سیکٹر 34R میں پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ متاثرین کے مطابق واٹر سپلائی لائنوں کے کنیکشن موجود ہونے کے باوجود گھروں تک پانی نہیں پہنچ رہا، جس کے باعث روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ مسلسل پانی کی عدم فراہمی نے انہیں ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ متعدد شکایات کے باوجود ان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا گیا۔ ہم لوگ یہاں تقریباً 40 سال سے رہائش پذیر ہیں اور تقریباً پہلے پانی آتا تھا اور اب تقریباً 10 سال سے پانی بالکل نہیں آتا، اور ہم لوگ یہاں سے پانی خرید کے پھر استعمال کرتے ہیں، پینے کا پانی، اور
जो यूज़ का पानी होता है वो हम लोग यहाँ से अपने बोरिंग के इस्तेमाल जो होता है ना वो लेते हैं। पानी की टंकियाँ खरीदते हैं हम लोग, तो हमें 6,000 की 7,000 की पानी की टंकियाँ मिलती है अब तक। वो 1 दिन 2 दिन चलती है, इतने ज़्यादा चलती नहीं है। फिर फैमिली बड़ी है, अब बंदा कितना परेशान था बंदा भागेगा। रिहायशी कहते हैं कि वो घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए टैंकरों और कैन के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। बाकायदगी से पानी के बिल भी अदा करते हैं, लेकिन अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। बाल 5,000 रुपये लेंगे, वो खोलेंगे भरपूर पानी आएगा। 1 दिन देंगे वो 5,000 रुपये में पानी। अब ये बताओ बिल भी भरें, इनको 5-5 हज़ार रुपये भी दें तो क्या फ़ायदा। पूरा होता है बिल में कमी नहीं होती, बिल पूरा कंप्लीट आता है और बिल भरते भी हैं हम लोग। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत और वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलाके में पानी की मुस्तकिल फराहमी यकीनी बनाई जाए और बरसों से जारी इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। नाज़रीन, बेलाल कॉलोनी के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में पानी की मुसलसल किल्लत ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज कर दी है। मकीनों का कहना है कि कई दिन पानी की सप्लाई नहीं आती, जबकि निजी टैंकर्स की कीमतें भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शदीद गर्मी में पानी न मिलने से ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग सभी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए अक्सा शेख की ये रिपोर्ट। कराची में पानी की किल्लत का मसला संगीन। शदीद गर्मी में पानी की अदम फराहमी ने बिलाल कॉलोनी के मकीनों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मकीनों के मुताबिक मजबूरी में निजी टैंकर्स खरीदना पड़ता है, मगर महंगे दामों पानी खरीदना अब हमारी कुव्वते खरीद से भी बाहर होता जा रहा है। खवातीन और बच्चे पानी के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि पानी कई दिन बाद आता है, हम बहुत परेशान हैं। गर्मी में हालात और खराब हो जाते हैं। कभी 51 सी जाना पड़ता है, कभी इलियास गोड़ जाना पड़ता है, यहाँ तो आते ही नहीं है। तो बोरिंग का ले लेते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, पानी पीने के लिए कहीं लेकर जाते हैं, या फिर फिल्टर वाला पानी लेकर लेते हैं हम लोग। वैसे मिलते ही नहीं, यहाँ पानी तो आ ही नहीं, कई साल हो गए। शदीद गर्मी, पानी की किल्लत और महंगे टैंकर्स, शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं और अब इंतजामिया से फौरी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। लाड़ी 5.5 नंबर और गोश्त मार्केट के करीबी इलाकों के मकीन बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। शहरियों का कहना है कि घरों में पानी की फराहमी ना होने के बराबर है, जबकि महंगी टैंकरों ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुतासरा मकीनों ने टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई और पानी की मुस्तकिल फराहमी का मुतालिबा कर दिया है। दुआशकील प्राचा की रिपोर्ट देखिए। कराची में पानी बहरान मजीद संगीन हो गया। लांडी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया शहरियों पर भारी पड़ने लगे। लांडी 5.5 नंबर और गोश्त मार्केट के करीबी इलाकों के मकीन पानी की शदीद बहरान का शिकार हैं। घरों में पानी की फराहमी न होने के बराबर है। रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए महंगे दामों टैंकर खरीदना मजबूरी बन चुका है। लांडी 5.5 नंबर की रिहायशियों के मुताबिक 15 बर्ड से सूरत हाल जू की तू है। इनका कहना है कि इलाके में टैंकर माफिया सरगर्म है और एक टैंकर 6 से 7 हज़ार रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है, जो आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। 13-14 साल होगा इस मसले का हल ही नहीं निकल रहा है और टैंकर माफिया यहाँ पे बैठा हुआ फीचर मोड़ के ऊपर। दुनिया को टैंकर मिले हैं, सामने देखें इनके टैंकर आते हैं, दिन में 4-5 टैंकर आते हैं। इन लोगों को सबको पानी मिल रहा है, आवाम को किसी को पानी नहीं मिल रहा है। सब पुरसाने हाल हुए हुए पानी के लिए, लोग खरीद के पी रहे हैं। बोरिंग में ज़मीन का पानी गायब हो गया है। क्या करें अभी हम लोग खुद परेशान हैं। दूसरी जानिब गोश्त मार्केट के मकीन भी पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना हो सके, जबकि खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। खरीद के पीते हैं यहाँ पर पानी, हमने टैंकर आते हैं यहाँ पर खरीद के लेना पड़ता है पानी। अब मजदूर इंसान है, इतनी कमाई नहीं जितना पानी वालों को देना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि टैंकर माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। मुतासिर इलाकों में पानी की मुस्तकिल फरहामी को यकीनी बनाया जाए ताकि इन्हें इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील, सिटी 21। नाजरीन, बिल पूरा मगर बिजली अधूरी। शहर कायद के बासी गर्मी, हब्स और लोड शेडिंग के दोहरे अजाब में गिर गए। लांडी के मकीनों का सबर जवाब देने लगा। शहरी सवाल उठा रहे हैं कि जब बिल पूरे वसूल किए जा रहे हैं तो बिजली की फराहमी में ये अंधेर नगरी क्यों है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। बिजली की तवील बंदिश कराची वालों के लिए दर्द सर बन गई। शहरियों के मामूलात मफलूज होकर रह गए।
लांडी नंबर 5 सेक्टर 36D के मकीन लोड शेडिंग से परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि बिल पूरे अदा करने के बावजूद रोजाना 10 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे घरेलू मामूलात और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। 18 घंटे की लाइट जाती है, 1.5 घंटे की जाती रहती है और क्या नाम है, इतनी परेशानी हो रही है। गर्मी के अंदर ना पानी है ना बिजली है, इतने परेशान है हम लोग। तो गर्मी में फिर कभी बाहर बैठ जाते हैं, कभी वजीर भाई के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। क्या करें, गर्मी के मारे। तो भाई हमें तो पानी चाहिए और बिजली चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। शदीद गर्मी, बंद कमरों में घुटन, पानी की किल्लत और कारोबारी सरगर्मियों में तात्तुल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मकीनों का कहना है कि बिलों की वसूली में कोई रियायत नहीं दी जाती, लेकिन बिजली की फरहमी के वक्त वादे और दावे दोनों गायब हो जाते हैं। हमारी स्कूल की छुट्टियां और दिन में पूरे दिन लाइट नहीं होती और रात में हम सो नहीं पाते सही से, और मीठा पानी भी नहीं आता इधर। भी लाइट नहीं होती, यहाँ पे हम सो भी नहीं पाते, बस घर ही में लेटे रहते हैं। यहाँ पे कभी भी लाइट नहीं होती है, बस आती है 8:30 बजे आती है, 10 बजे चली जाती है। कारोबारी तबके और इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि मामूलाते जिंदगी दोबारा बहाल हो सके। कैमरामैन कयूम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं मई 26 में तजारती खसारे में 39% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक मई में बरामदात में इजाफे और दरामदी बिल में कमी की वजह से तजारती खसारे में बड़ी कमी हुई है। मई 26 में तजारती खसारा 2 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गया है, जो अप्रैल 26 में 4 अरब 26 करोड़ डॉलर था। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती इक़दामात, तिजारती खसारे में बड़ी कमी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक अप्रैल 2026 में 4 अरब 26 करोड़ डॉलर रहने वाला तिजारती खसारा मई में कम होकर 2 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गया। तिजारती खसारे में माहाना बुनियाद पर 39% की रिकॉर्ड कमी हुई। मुशीर खजाना ने बताया कि मई 2026 में बरामदात में माहाना बुनियाद पर 10% इजाफा हुआ और उनका हजम 2 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया, जबकि अप्रैल में बरामदात 2 अरब 46 करोड़ डॉलर थी। खुर्रम शहजाद के मुताबिक IT सेक्टर की बरामदात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा मुल्क की मईशत के लिए हौसला अफजा इशारा है। जानिब मई 2026 में दरामदी बिल माहाना 22% की बड़ी कमी देखी गई। दरामदात का हजम अप्रैल के 6 अरब 73 करोड़ डॉलर के मुकाबले में कम होकर 5 अरब 28 करोड़ डॉलर रह गया। मुशीर खजाना का कहना है कि बरामदात में इजाफे और दरामदात में कमी के बाइस तिजारती खसारे में नुमाया कमी मुमकिन हुई। मजमूई तौर पर रवां माली साल के पहले 11 माह के दौरान तिजारती खसारे में 17.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई से मई माली साल 2025-26 के दौरान तिजारती खसारा 34 अरब 75 करोड़ डॉलर रहा, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत में ये 29 अरब 58 करोड़ डॉलर था। अदद शुमार के मुताबिक रवां माली साल के पहले 11 माह में बरामदात 5.6% कमी के बाद 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रही। माशी माहिरीन के मुताबिक मई में तिजारती खसारे में नुमाया कमी मुस्बत पेशरफ्त है। ताहम सालाना बुनियाद पर तिजारती तवाज़ुन को मजीद बेहतर बनाने के लिए बरामदात पर पायदार इजाफा जरूरी होगा। अशरफ खान, सिटी 21। विफाकी बजट से कबल कारोबारी बरादरी ने टैक्स अहदाफ पर टैक्स और कारोबारी शोबे पर बढ़ते हुए बोझ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के चेयरमैन साकिब फयाज मगू और फेडरेशन चैम्बर के सीनियर नायब सदर अमान पराचा ने बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। मईशत का दबाव बढ़ने लगा, बजट से कबल बिजनेस कम्युनिटी भी मैदान में आ गई। कारोबार दोस्त पॉलिसी की आवाज बुलंद कर दी। कारोबारी बिरादरी ने आइंदा विफाकी बजट से कबल हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए टैक्स अहदाफ और सुपर टैक्स पर नजरसानी का मुतालबा किया है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के चेयरमैन साकिब फयाज मग्गू ने कहा, हुकूमत को गैर हकीकी टैक्स अहदाफ मुकर्रर करने के बजाय सनती और तिजारती तरक्की को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए। आइंदा माली साल के लिए 15,200 अरब रुपए का मुआवजा टैक्स हदफ जमीनी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। तो इस टारगेट से जो है मेरे ख्याल में इससे कोई फायदा नहीं होता, और इसमें जो है जो टारगेट फिक्स करना चाहिए, हम ये मुतालबा करते हैं कि टारगेट फिक्स करें, हमारे साथ बैठ के हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स करें और ये फिक्स करें कि हम कितनी एक्सपोर्ट करेंगे और हमें उस सेक्टर को क्या इंसेंटिव चाहिए, क्या गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट चाहिए, तो वो उसके ऊपर बात की जाए और फिर उस एक्सपोर्ट के टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी मिलकर काम करे।
मुताबिक फयाज मकबू ने मुतालबा किया कि सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, ताहम ऐसा मुमकिन ना हो तो कम अज कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इससे मुस्तस्ना करार दिया जाए। ये भी कहा कि जीएसटी की शरह को कम करके 15% किया जाए और सनती खाम माल पर टैक्सों में कमी लाई जाए ताकि बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सके। हमने एक्सपोर्ट की बात की कि एक्सपोर्ट की कैसे कॉस्ट कम की जा सकती है, तो उसमें एक आंसर सुपर टैक्स भी है। और अगर अभी गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू का मसला है तो हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम सुपर टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर से खत्म किया जाए और जीएसटी जो है वो 15% किया जाए। जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कम किया जाए, उसके ऊपर से जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएं, तो हमारी एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट है वो कम होगी। फेडरेशन चैम्बर के सीनियर नायब सदर अमान पराचा बोले, रवा माली साल में तकरीबन 864 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। हुकूमत को माशी इस्लाहत के लिए ताजरों, सनतकारों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इनके तजावीज पर अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी दरख्वास्त है कि आप इसको देखें कि शॉर्टफॉल क्यों होता है। मैं समझता हूँ या फेडरेशन समझती है कि आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के पॉलिसीज़ नहीं बनाते, ये आप नहीं देखते कि किस सेक्टर्स को क्या मुश्किलात हैं, क्यों नहीं अपना बिजनेस रन कर पा रहा, क्या हो रहा है। और जब तक आप उनके साथ नहीं बैठ के बजट बनाएंगे उस वक्त तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। कारोबारी रहनुमाओं का कहना है सनअत, तिजारत और बरामदात के फरोग के लिए बजट में कारोबार दोस्त इकदाम नागुज़ीर हैं। बसूरत दीगर मईशत को दरपेश चैलेंजेस से मजीद संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सर शाहिद T21। नाजरीन, नई पाकिस्तानी फिल्म ज़ोंबिड ने रिलीज होते ही सिनेमा घरों में धूम मचा दी है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज करते हुए 21 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सिनेमा की नई हॉरर थ्रिलर फिल्म ज़ोंबिड ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री दे दी। फिल्म ने इब्तिदाई दिनों में ही 21 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस करके शायकीन और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को हैरान कर दिया। फिल्म को नौजवानों और फैमिलीज की जानिब से भरपूर रिस्पांस मिल रहा है। फहद मुस्तफा की पावरफुल परफॉर्मेंस और महविश हयात की जानदार अदाकारी को नाजरीन की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। शानदार विजुअल इफेक्ट्स के इस्तेमाल ने फिल्म को मजीद हकीकत के करीब बना दिया है, जिसके बायस सिनेमा घरों में हाउसफुल के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। शायकीन का कहना है कि फिल्म की कहानी मुनफरिद, जानदार और एंटरटेनमेंट से भरपूर है, जिसने पाकिस्तानी सिनेमा में एक नया रुझान मुतारुफ कराया है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसी मूवी का और हमें बहुत मजा आया है। ऐसी मूवीज पाकिस्तान में और बननी चाहिए। डेफिनेटली बिल्कुल बननी चाहिए भाई। अब थोड़ा सा जॉनर चेंज करना चाहिए, लव स्टोरी से निकल के थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए हमें। शायकीन ने महविश हयात और फहद मुस्तफा की अदाकारी को खूब सराहा और फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को भी शानदार करार दिया। बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी मूवी आई है, खासतौर पे महविश हयात और उसका फहद का काम बहुत अच्छा था। फिल्म बीनों का कहना है कि ज़ोंबिड की कहानी बहुत जानदार है और पाकिस्तानी सिनेमा को ऐसी मजीद फिल्मों की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुबैर राशिद, City 21।